এবং পাশাপাশি হেভিওয়েট নেতারা রয়েছে, সেক্ষেত্রে কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে? না, চ্যালেঞ্জিং তো বটেই এখানে, কারণ চ্যালেঞ্জিংটা একদিকে দেখা যাচ্ছে যে পয়সার দিক থেকে, অর্থের দিক থেকে চ্যালেঞ্জিং অবশ্যই। কারণ আমার কাছে না সারদা আছে, না নারদা আছে, না কাটমানি আছে, না সেদিকে আমার জনগণের আশীর্বাদ রয়েছে আমার কাছে। এটা নিয়ে আমি মাঠে নেমেছি। সেই মাঠে যত দিন যাচ্ছে ততটাই মানুষের সাড়াটা পাচ্ছি এবং 100% আশাবাদী। কারণ এমন একটা ডিসিশন দিয়েছে বাবুল সুপ্রিয়কে এখানে চাপিয়ে ঢোকে, যেখানে সংখ্যালঘু একটা মেজরিটি সিট। আর বাবুল সুপ্রিয়র যে মন্তব্যগুলো সেটা তো সবাই জানি আমরা কীরকম ওনার বক্তব্য। সেই জায়গাটা বাবুল সুপ্রিয়কে দিয়ে কিন্তু একটা সাংঘাতিক একটা বার্তা তৃণমূল কংগ্রেস দিতে চাইছে যে আমরা যা ডিসিশন দেবো তোমাদেরকে মাথা নিচু করে পেতে নিতে হবে। সেটা কিন্তু এবার জনগণ এবার আর মানতে পারছে না। এবার প্রশ্ন উত্তর ওরা করছে, বলছে যে এবার আমরা প্রশ্নও করবো, আমরা উত্তরও চাই। মানুষের সাড়া কেমন পাচ্ছেন এখন পর্যন্ত? 100% খুবই ভালো সারা আছে মানুষের। এত বছর পর কংগ্রেসের একটা ক্যান্ডিডেট এখানে এসেছে, তারপর মানুষের মনের ভিতরে একটাই জিনিস আছে, জিজ্ঞাসা আছে যে কংগ্রেসকে কীভাবে জীবিত করা যায়। আমি একটা প্রতিনিধি হয়ে কংগ্রেস দলের এখানে নির্বাচনে আছি। আশা করি যে এই নির্বাচনে একটা বাংলাতে কংগ্রেসের উদ্ধার হওয়ার একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে। এখানকার মূল কোন সমস্যাটার প্রতি ফোকাস করবেন? সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা এখানকার হচ্ছে বস্তি উন্নয়ন। সে কাউন্সিলররা আজকে এত বছর ধরে 34 বছর বাম শাসন, 10 বছর 11 বছর তৃণমূল শাসন, কিন্তু সেই জায়গাটা বস্তিগুলোর আজকে ক্যালকাটার মতন আধুনিক শহর এই বস্তিগুলো থাকবে কেন? ঠিকা টেন্ডেন্সি একটা গভর্নমেন্ট টেন্ডেন্সিটা তুলে দিল, তাও সত্ত্বেও এই ঠিকা টেন্ডেন্সি বস্তিগুলো ডেভেলপ হচ্ছে না কেন? ইডাব্লিউ স্কিম রয়েছে সরকারের, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফান্ডেড আছে এবং স্টেট গভর্নমেন্টের ফান্ডেড। সেই ইডাব্লিউ স্কিম ব্যবহার করে কেন এখানে পেয়ারা বাগানের মতন বস্তি থাকবে, কেন তিলজালা থাকবে? আর ওই জায়গাতে একই জায়গাতে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড রয়েছে, যেখানে কোটি কোটি টাকার বাংলো রয়েছে। মানুষের ইকোনমিক ডিভাইডটা এত চোখে পড়ছে আমার, সেই ইকোনমিক ডিভাইডটা কীভাবে আমি ওটাকে ম্যাচ করব, সেটাই আমার আশা। প্রচারের অস্ত্র কী হবে? প্রচারের অস্ত্র একটাই, এখন সব কিছু তো বন্ধ করে দিয়েছে ইলেকশন কমিশন, যেহেতু মাধ্যমিক চলছে, একদিকে রমজান মাস চলছে, তো এখন আমার ডোর টু ডোর যাওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানুষের কাছে একটাই বার্তা দিতে চাই যে একটা জায়গা আপনারা তৈরি করুন। 294টা সিটের মধ্যে 215টা এবার মমতা ব্যানার্জির সরকারের রয়েছে। একটা সিটও যদি হারো, তৃণমূল কংগ্রেস হারে, তাও কিন্তু সরকার পড়ছে না, না তো বিজেপি সরকার আসে। কিন্তু কংগ্রেসের একটা প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে প্রশ্ন সওয়াল জবাব করার একটা জায়গা তৈরি করুন, যাতে আমি মানুষের কাছে মানুষের প্রশ্ন নিয়ে মমতা ব্যানার্জির সরকারকে প্রশ্নটা করতে পারি। এটাই আমার আবেদন মানুষের কাছে। প্রার্থী আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লড়াইটা হচ্ছে বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে। কেন বাবুল সুপ্রিয় কিছুদিন আগেও তৃণমূলের সম্বন্ধে নোংরা নোংরা ভাষায় কথা বলেছিলেন, আজ ওরই ঝান্ডার তলায় দাঁড়িয়ে। এখানে একমাত্র প্রার্থী আছে কামরূপ ভাই চৌধুরী, জি উনি অ্যাকচুয়ালি লোকের পাশে দাঁড়িয়ে লোকের কথা শোনার চেষ্টা করেন আর বোঝার চেষ্টা করেন, মানুষকে যতটা হেল্প করার উনি করবেন, এইটুকু আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা জানি কোনো জায়গায় আমরা নেই, কিন্তু একটা যদি জায়গা করে দিতে পারা যায় তাহলে অন্তত আমরা প্রতিবাদের জন্য দাঁড়াতে পারবো। আমরা বলছি না আমরা মন্ত্রিত্ব পাবো, আমরা বিধান সবাই গিয়ে বসতে পারবো, আমরা এইসব ভাবতেই পাচ্ছি না। কিন্তু একটা মাত্র বালিগঞ্জটা নিয়ে আমরা কোথাও দাঁড়াতে পারবো না। কিন্তু আমরা চাই যদি আমরা জিতি, আমরা আম জনতার পাশে গিয়ে আম জনতার যা কথা সেইটা যেন আমরা সবার সামনে বলতে পারি, তুলে ধরতে পারি। এমন একটা দল কংগ্রেস, যা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের জন্যই হয়ে করেছেন। এখন ঠিক আছে, এখন এইখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের তৃণমূল, কিন্তু তৃণমূল সাধারণ পাবলিকের কথা ভাবে না। আমি আজকে কামরুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে ঘুরে দেখলাম, সাধারণ বস্তিতে বস্তিতে ঢুকে উনি যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বাচ্চাদের এডুকেশান, কাজের কাজের যে মান সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন উনি। এবং উনি বললেন যে আমি যদি যাই, আমি বিরোধী সবার কাছে গিয়ে অন্তত এই বালিগঞ্জ কনস্টিটিউয়েন্সির যা প্রবলেম আছে সেটা আমি তুলে ধরতে পারবো এবং আপনাদের হয়ে আমি একটা দাবি, জোরালো দাবি নিয়ে দাঁড়াতে পারবো। देखिए, हालात तो सभी को पता है कि क्या हालात है। एक दंगाइयों को एक ऐसी जगह से टिकट मिलता है जो पहले बीजेपी में एमपी था, उसके हाथ से एक इमाम का बेटे का कत्ल होता है, और सिर्फ कत्ल नहीं होता है, उस कत्ल को सेलिब्रेट करते हैं ये लोग।
फिर वो दंगाई अपने लालच के चक्कर में यहाँ की जो रूलिंग सरकार है उसमें आता है और उसको ऐसी जगह से टिकट मिलता है जहाँ पर 60% से ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो ये चीज़ें साफ दर्शाती है कि इन लोगों की मनोकांक्षा क्या है। एक्चुअली जो दंगा आसनसोल में हुआ था, यही दंगा ये लोग यहाँ पर करना चाहते हैं बालीगंज में, क्योंकि बालीगंज एक ऐसा इलाका है जहाँ से हर वक्त आवाज़ उठता है। जब NRC CA लाया गया था तब भी बालीगंज में शाहीन बाग के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बालीगंज में। यहाँ पर anti-CA प्रोटेस्ट हुआ था जब हिजाब को लेकर पूरा देश में हिजाब बैन किया जा रहा था। हमारी हिजाबी बहनों को जब स्कूल कॉलेजेस से निकाला जा रहा था तब भी इसी पाक सर्कस बालीगंज की लड़कियों ने हिजाब और किताब और इनकलाब का नारा देके सबसे बड़ा मिছিল किया था। तो ये इन लोगों का टारगेटेड एरिया है। आप अगर आसानसोल का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे जब वहाँ पर बाबुल सुप्रियो ने दंगा करवाया उसके बाद से वहाँ के मुसलमान जो है बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी अगर दंगा होता है तो एक बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए डरता है। वो अपने बच्चों को, तो उस दंगे के बाद से आसानसोल में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि NRC CA के बाद आसानसोल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन दंगा को करा के क्या किया गया, वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के जो आम लोग हैं उन लोगों के दिलों में डर पैदा किया गया। यही डर ये लोग बालीगंज में करना चाहते हैं, क्योंकि बालीगंज से हमेशा आवाज़ उठता है। तो बालीगंज में बाबुल सुप्रियो जैसे एक दंगाइयों को, एक कम्युनल लीडर को जिता के ये लोग यहाँ के जो लोग हैं आसानसोल में जैसे ये लोग डराए हैं, बालीगंज के लोगों को डराना चाहते हैं। यहाँ पर भी दंगा करवाना है। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे CPM का जो कैंडिडेट है शाहिरा शाह अली, उसका ना यहाँ पर कोई ग्राउंड है, ना वो कभी यहाँ की बस्तियों में घूमी है। उनका वक्त बीतता है एलिट क्लास लोगों के साथ, थाईलैंड में, पार्टीज़ में, वाइन के साथ, क्लब में, कैफ़े में। आज जहाँ पर एक वार्ड है आपका 69 वार्ड में, जहाँ पर 22 बस्तियाँ हैं, वो बस्तियों के लोगों के जो दुख है, जो दर्द है, वो क्या समझेगी। उसको एक पायलट जैसा एक कैंडिडेट दे दिया गया। सोचे थे कि उर्दू नाम का है, माइनॉरिटी इलाका है तो यहाँ से खेलेंगे, जबकि आप अगर उसका बयान उठा के देखेंगे तो ये लोग वही हैं जो लोग जाके बोलते हैं कि हिजाब इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। मुसलमानों को अपनी हक की लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। इनके बाप जो होते हैं वो जाके आलिया यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए। और फिर ये वक्त आता है जब ये लोग बालीगंज से लड़ते हैं और हिजाब पहन के अपना पोस्टर लगाते हैं। तो ये इन लोगों का जो मुस्लिम टोकनिज़म है ये एक्सपोज हो चुका है। और 34 ईयर्स के CPM के रूल में क्या क्या हुआ है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, चाहे वो मुरीद छापी का इंसिडेंट हो, चाहे वो आपका जो मलदा में मस्जिद का जो इंसिडेंट हो, चाहे बहुत सारे जेनोसाइड जो बंगाल में हुआ है, इन लोगों का रूप सभी को पता है कि वो लोग क्या करते हैं। एक टाइम था जब पार्टी ऑफिस में हस्बैंड और वाइफ का झमेला जाके वहाँ पर पार्टी ऑफिस में मिटाया जाता, CPM के पार्टी ऑफिस में। इन लोगों ने हर व्यक्ति के घर में, उसके पर्सनल लाइफ में घुस के वहाँ पर उन लोगों पर अत्याचार किया है। तो ये लोग पहले से एक्सपोज हैं। बालीगंज की जनता को शाहिरा शाह अली कौन है ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो कभी ग्राउंड में आई नहीं, कभी लोगों का आवाज़ नहीं उठाती हैं। उनका जो अभी कैंपेनिंग चल रहा है, उनके IT सेल के लोग पाक सर्कस के धरना मंच को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऐसे कैंडिडेट को जो नॉर्मल टाइम में, जिसको इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लगाव नहीं है, वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए जब बालीगंज में खड़ी होती है तो हिजाब पहन के रमज़ान विश करते, हिजाब पहन के प्रचार में जाती है। तो ये लोग वही बहरूपिया है, जैसे ममता बनर्जी जो करती हैं, इफ्तार आ जाता है तो इफ्तार में जाके एक हिजाब ओढ़ के इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलने लगती हैं। तो ये भी उसी टाइप का पॉलिटिक्स का फॉलो कर रहे हैं ये लोग, शाहिरा शाह अली और इनका CPM गया। तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं, बालीगंज की जनता है, ये लोग इनको नाकार चुके हैं। और अभी एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है कमरू जमा चौधरी, एक सिविल इंजीनियर है, NIT जमशेदपुर से BTech किए हुए हैं, IIT KGP से MTech किए हुए हैं, जो यहाँ पर लोगों को किस बात का वादा कर रहे हैं, इस बात का वादा कर रहे हैं कि आपके जो संतान है उन लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, उनका अच्छा एडुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट। आज अगर आप देखेंगे पूरा वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी नौकरियाँ नहीं हैं। लोग, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कोई नौकरियाँ नहीं आई। इसकी वजह क्या है? एक्चुअली वही क्लब में 500 रुपया, 10,000 रुपया दे के गुंडे ममाली को लेके सिंडिकेट चलाया जा रहा है। आप अगर देख लेंगे पिछले एक महीने में 30 से ज़्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स हो चुका है पूरा बंगाल में। तो ये सिचुएशन है। यहाँ पर जब एक एडुकेटेड बंदा जो खड़ा होता है, जो हर एक पिछड़ा हुआ कम्युनिटी की बात रखता है, जो हर पिछड़ा हुआ जो स्टूडेंट है उसका बात रखता है, तो लोग देख रहे हैं कि हमको कैसा बंदा चाहिए यहाँ पर चुन के आने के लिए। तो लोग कमरू जमा चौधरी के साथ हैं। हम लोग आशा करते हैं कि वही जीतेंगे इंशाल्लाह। और एक एडुकेटेड पर्सन के सामने कम्युनल एक दंगाई नहीं टिक पाएगा। हमें बालीगंज की जनता पे भरोसा है, उनके राय पे भरोसा है 12 तारीख को, और उसके बाद 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह एक दंगाइयों को हरा के यहाँ के लोग एक मैसेज देंगे, यहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, आप
गवर्नमेंट में है, आपको 213 सीटें मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी हमारे ऊपर थोप सकते हैं। आज बाबुल को थोपे हैं, कल शुभेंदु आएगा तो शुभेंदु को भी थोपेंगे आप लोग। जो टेकन फॉर ग्रांटेड आप हमें ले चुके हैं, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, हम लोग आपके पॉलिटिकल गुलाम नहीं है। हम लोग हक की बात बोलते हैं, हक की बात जो बोलता है उसी के सपोर्ट में खड़े होंगे। নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কমরুজ্জামান চৌধুরী তিনি কিন্তু একেবারে বালিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক এভাবেই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং সেখানে কিন্তু মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এবং কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক খাও, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক খাও, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছেই চলবে, তৃণমূলের চলবে। বন্দে মাতরম, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ চলবে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই চাই, লড়াই করে তৃণমূল বিজেপি এক হ্যাঁ ভুলো মত, ভুলো মত, ভুলো মত, ভুলো মত। ধন্যবাদ।